Yesterday we were discussing about velocity and displacement, right? The relationship between velocity and displacement. Now, I told you there are two kinds of velocities that can be defined. One is called average velocity, and the other is called Instantaneous. instantaneous. Okay. Now, what was instantaneous velocity? If you compare from the real world, if you're journeying in a bus or a car, what will give you the instantaneous velocity? Speedometer. Speedometer. The speed on the speedometer at any point of time is the instantaneous velocity at that instant. Clear? Whenever you are taking the reading. Now, what is average velocity? The total distance on total time taken. It is actually total displacement by total time. So Yes. before going into that, let me just clear one thing. There is a distance. There is a difference between distance traveled and displacement that you know from your school, I guess, right? Yes, sir. So suppose this is some journey you are making, some random path. You're going on some random path here. Okay. Suppose you are starting from point A and you are ending your journey at point B. So this is your starting point and this is your ending point. Now the distance on this in this journey is actually the length of this route. Do you agree? Yes, sir. So the Yes, length, sir. I can say that length of the route gives the Distance. distance traveled. Actually, these things will be covered in the chapter of vectors, which will be the next topic actually. Okay, anyway, but I'm telling you beforehand, if there is confusion among some students, it will be clear. Now, whereas what is displacement here? Sir, shortest path. Farthest distance between A and B. Yeah, it is the shortest path or shortest distance between point A and B. So this green line, and always displacement is a straight line. Okay, so this Yes, green line will represent the displacement. Clear? So what I yes, can sir. say is, I can say this is the distance traveled, and this thing, okay, this is the distance traveled, and this green thing is the displacement. Clear? Now, rate of change of displacement is what? Okay, let me just write down the definition here. Velocity. Let me write down the definition here. Let me write down the definition. Wait. So I'll write this in same color. Displacement. So displacement is the shortest distance Shortest path or shortest from the starting point to the initial point. ending point, or initial and final also you can say, right? You Yes, can sir. put initial position, you can say the shortest distance between Initial and final position. initial and the initial and the final positions. Okay. Now, what is displacement? Displacement is speed. Speed is rate of change of or rate of Distance. Distance. Position. distance covered. Okay. Speed is rate of distance covered. That means what? If you start Distance by time. the length of this pink line by the time interval, if you do, you'll get the speed. Clear? Whereas Yes, sir. velocity, what is Rate velocity? of displacement covered. Okay, we can define velocity in two ways. Velocity is rate of
change of Position. position or rate of displacement or Rate of displacement. rate of displacement. Displacement. Now, whatever we are discussing in this chapter is mainly about velocity and displacement. We don't discuss about distance traveled. Okay, if there are problems relating to distance traveled, then we will mention that in the beginning. Okay, clear? Yes, sir. What is the symbol for position? Let me just write that also. So. Okay. Tell me, what is the symbol for so for example, if R is given, R is the symbol for or the notation used for position, S is for displacement. Speed or displacement. No, S is for displacement, and V For is for speed or Velocity. velocity. V is for velocity, A is for acceleration, A is for Acceleration. Acceleration. and T is for time. T is for Time. Time. and if you have things like U and all, that is initial speed and final speed. Clear? So let me write it here. Next topic. Yeah. So let me write all the S. So S first comes, then comes S, then okay. Before S, let me write R. And what is the next? S. And what is next? V. V. Then we have U also. We have A also, right? Yes. Now T is for time, and R is for position. S is for displacement. V is for Velocity. velocity. Sometimes final velocity also. Yes, sir. It is used for both. It is used for velocity also. It is used for final velocity also. This is for initial velocity. Initial Velocity. A is for acceleration. Acceleration. Now, generally, all these quantities are generally represented, or generally they can be given as functions of times. You are getting my point? Yes, sir. Yes, sir. One more thing. S is equal to R final minus Initial. R initial. Now, if the motion is one dimensional, if motion is one dimensional, what do you mean by one dimensional? The particle is moving only on a straight line. For example, you have a railway track, straight railway track. On that, train can move only in one dimension. Clear? Yes, sir. So, Yes, if sir. the motion is one dimension, position is also position In is one side. no. In All one direction. represented by x. You are getting my point? Yes, sir. So displacement can be given as what? Displacement can be given as what? S equals to, tell me. S equals to D by S equals to S equals to x minus x. Xs means final position, xi means initial position. Clear? Yes, sir. So this is your final position, and this is initial position. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
One thing. Anything can be function of time. Anything can be function of time. For example, s can be written as s. S is a s is position, right? Or s is displacement, right? So s of t can be given as anything. Tell me, 5t or anything. Let me 70 minus 5t square. This is your position. Are you getting my point? Yes, sir. Now, Yes, if this is position, what is v equal to? sir. ds by dt. It is ds by dt for the derivative of s, which is what according to this? Tell me. Tell me. 70 का डेरिवेटिव क्या है? 7 7 है and minus 10 Minus t 5. minus 10 t. minus 20. Are you getting my point? Yes, sir. देखो इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है. सॉरी, 70 का डेरिवेटिव 7 है हियर. 70 का डेरिवेटिव 7 है और माइनस 5t स्क्वायर का माइनस 10t है. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. टेल मी व्हाट इज a of t? Acceleration. Sir, dv by dt. It is derivative of velocity. Acceleration is rate of change of velocity. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जब भी बोलते हैं आप डेरिवेटिव निकालते विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बोलो क्या आएगा आपको? Sir, minus 10. माइनस 10 आएगा. क्यों? 7 का 0 है और माइनस 10t का 10 है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Okay. Now the thing is, what did we are? We बोलो v is the derivative of s. Agreed? Yes, A sir. Yes, sir. is the derivative of v. क्लियर? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिखूंगा मैं. एक और चीज देखना इधर. अगर आप s का डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा? Sir, velocity. वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? Acceleration. एक्सेलरेशन. ये आएगा एक्सेलरेशन आपका. ठीक है, समझ में आई बात? ओके. नाउ अगर a का इंटीग्रल निकालोगे क्या आएगा? Sir, velocity. एक्चुअली इट अपीयर्स एज इफ वेलोसिटी आएगी, बट इफ यू थिंक केयरफुली आएगी आपको चेंज इन वेलोसिटी. आई विल प्रूव इट लेटर. ओके, विल गेट चेंज इन. Velocity. Yes, sir. देखो, चेंज इन वेलोसिटी आएगी. और अगर वेलोसिटी का निकालोगे तो आएगा क्या? इन Displacement. Displacement. Change in displacement. चेंज इन पोजीशन आएगा तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये आएगा चेंज इन वेलोसिटी और ये आएगा चेंज इन Displacement. Position. चेंज इन पोजीशन which is Position. displacement. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. I'm asking you one question. Just tell me. अगर पोजीशन t पावर पोजीशन इज t क्यूब और डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया हुआ है आपका s इक्वल टू टी क्यूब. s इक्वल टू टी क्यूब. तो आप मुझे v कितना? Sir, 3t square. v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर. कैसे आया? Differentiation of ds by.
डिफरेंशिएशन किया आपने, किसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया तो आपको v आ गया, ठीक है। और a कितना आएगा? 60. 60. a कितना आएगा? 60. 60। सबको क्लियर है ये? Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? Yes, sir. Sir. तो मेरे को ये बोलो आपके, डज दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? ये यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है क्या? डज दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? Yes, sir. No, sir. रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म। रीजन? Sir, acceleration. रीजन क्या है इसका? एक्सेलरेशन इज, Not same throughout. तो करेक्ट वर्ड क्या है? एक्सेलरेशन इज रीजन, Variable. acceleration is not a constant, not a constant, it's a Variable. variable। क्यों वेरिएबल? क्यों वेरिएबल? टाइम के साथ Time के टाइम साथ होगा, 0 सेकेंड्स पे 0 होगा, 1 सेकेंड पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 2 पे 3 पे जो है 18 होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. अभी आप बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन। S equals to t square. Does this represent uniform or non-uniform motion? So uniform. Uniform। कैसे पता चला? You can quickly do derivative। Yes, sir. आपको v Yes, कितना sir. Sir, 2T. और एक बार डेरिवेटिव कर लेना, Sir, 2. तो a कितना है? 2. a इक्वल टू 2 आया। तो 2 कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, Yes. sir. कांस्टेंट है। therefore this represents Uniform motion. uniform motion। reason? a The acceleration is constant. is constant, is Constant. constant। क्लियर? समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट Sir, बोलिए। सॉरी, sir, can you please say why x is derivative of v and derivative of a? why a is derivative of v and v is derivative of a? v is v is derivative of Yes, s, yeah। Yes, sir. see acceleration is what? Acceleration, rate of change of velocity, rate of In the Change of velocity. change of velocity, rate of change of velocity। ये डेफिनेशन है एक्सेलरेशन का। क्या है डेफिनेशन? दिस इज बाय Yes, sir. डेफिनेशन, मतलब ऐसे डिफाइन किया गया एक्सेलरेशन को, ठीक है। Okay, sir. ए कैसे लिखोगे आप? ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। देखो, जब भी रेट वर्ड आएगा फिजिक्स में पर चेंज इन टाइम, you're getting my point? Yes, Yes, sir. जब भी वर्ड रेट आएगा इट इज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब डेल्टा टी से डिवाइड करो हमेशा डेल्टा वी को, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. तो जब भी रेट आएगा फिजिक्स में यू हैव टू डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब क्या? आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया t1 पे और आपने ऑब्जर्वेशन एंड किया t2 पे, तो आपका टाइम इंटरवल कितना है? t2 माइनस t1। Yes, sir. आपने 2 बजे स्टार्ट किया और 2:30 बजे जो है ना आपने आपका ऑब्जर्वेशन एंड किया,
तो आपका जो टाइम इंटरवल है दैट इज 0.5 आवर। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. आपने 10 सेकेंड्स पे स्टार्ट किया ऑब्जर्वेशन, 15 सेकेंड्स पे आपने अपना ऑब्जर्वेशन रोक दिया, तो आपका टाइम इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 सेकेंड्स। क्लियर? 5 seconds. Yes, Yes, Okay. sir. और आपने देखा कि वेलोसिटी चेंज हुई फ्रॉम v1 टू v2, तो आप रखोगे चेंज इन वेलोसिटी एज v2 minus v1। so this is delta 2 by delta 1। are you getting my point? Yes, sir. ये है आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अच्छा, ये तो हो गया एवरेज, ये तो हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया? एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया आपका? एवरेज। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, क्या करोगे? इंस्टेड ऑफ टेकिंग डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, व्हाट विल यू टेक? small. एक स्मॉल टाइम इंटरवल पे आप ऑब्जर्व करोगे कि कितना उस टाइम पे कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो आएगा आपको a इज इक्वल टू dv by dt। दिस प्रूव्स दैट acceleration at any point of time is Instantaneous. derivative of क्या? वेलोसिटी। क्लियर? समझ में आई बात? Yes, sir. Okay, next let us define what velocity is। now velocity का definition कैसे? बोलो। velocity is defined as, देखो डेफिनेशंस अच्छी तरह देखो आप लोग। is defined as the rate of change Rate of of change of the rate of change of Displacement. Displacement. the rate of change of position, rate of change of Position. Position. position, but change of position is displacement na, Yes, so sir. we define it as the rate of displacement also, rate of displacement also। अच्छा, एक बात बोलो, the fact is rate of change of position और rate of change of displacement एक ही होता है। समझ में आई बात आपने? मैं एग्जांपल Yes, देता हूँ। अगर आपने 10 मीटर पे स्टार्ट किया, एंड किया 15 मीटर पे, एंड किया 15 meters. 15 मीटर पे, तो आपका पोजीशन x1 क्या है? 10 है, Yes, है क्या नहीं? x1 क्या है? 10 है, और x2 क्या है? 15 है। चेंज इन पोजीशन कितना है? 5. 5 meter. +5 है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन है +5 मीटर। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा, चेंज इन पोजीशन आपका +5 मीटर है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की क्या बात है? देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट S1 हमेशा 0 होता है कि नहीं? Yes, sir. और S2 कितना है? S2 5 मीटर से दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. S2 1 मीटर है और S2 कितना है? 5 मीटर है। तो कैन यू सी दैट रेट ऑफ और चेंज ऑफ पोजीशन एंड चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही है? Yes, sir. कैन यू सी दैट? Yes, sir. Okay. So one thing you keep in mind, change of position and change of displacement is always same। ठीक है? Yes, sir. So change of
डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज सेम. द ओनली डिफरेंस इज इनिशियल पोजीशन जो है नॉन जीरो हो सकता है, मगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होना चाहिए. क्लियर, समझ में आई बात? Yes, sir. है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जांपल, इनिशियल पोजीशन इज -5 meters, फाइनल पोजीशन इज +20 meters. तो अकॉर्डिंग टू दिस इनिशियल पोजीशन कितना होगा? हमेशा जीरो होगा, है क्या नहीं? और फाइनल कितना होगा? 25. 25. वेरी गुड. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? Velocity. वेलोसिटी. ये हो गया आपका वेलोसिटी. तो अकॉर्डिंग टू दिस रेट कैसे लिखते हो आप हमेशा? रेट. Per time. ओके, रेट. तो वेलोसिटी यू राइट एज v इक्वल्स टू, बोलिए, By T. upon delta time. डेल्टा s. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा T. t. इट इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t. ठीक है, Yes, sir. क्योंकि इट इज आल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आल्सो, राइट? ठीक है, बट ये हो गया एवरेज की बात. ये किसकी बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? Average. ये एवरेज Velocity. वेलोसिटी की बात है. जब भी डेल्टा आता है एवरेज, ठीक है, Yes, sir. वेलोसिटी की बात हो रही है. अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, ds by dt. Small d. v इक्वल्स टू ds बाय dt. dt. ठीक है, तो therefore the derivative, बोलिए, बोलना, आप लोग बोलो, प्लीज कंप्लीट, बोलिए. The derivative of velocity is displacement. नो, देखो, देख के बोलो. डेरिवेटिव ऑफ Displacement is velocity. डिस्प्लेसमेंट इज Velocity. gives which velocity? Instantaneous. Instantaneous. वेलोसिटी. ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. तो Yes, sir. आपने क्या क्या सीखा अभी? 2 चीजें सीखी आपने कि एक्चुअली 3 चीजें सीखी आपने. v इज इक्वल टू ds बाय dt, ds बाय Dt. dt, और कैन बी रिटन एज dx बाय dt आल्सो. और अगर मोशन y डायरेक्शन में हो रहा है तो dy बाय dt भी लिखोगे आप. ठीक है, समझ में आई बात? फॉर एग्जांपल वर्टिकल बॉडी में यू जस्ट राइट इट एज dy बाय dt. ठीक है, इट डिपेंड्स कि कौन से डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है. दूसरी चीज क्या सीखी आपने? एक्सेलरेशन, बोलिए, इक्वल्स टू dv by dt. dv by dt. क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. Okay. Now based on this we will write a few more things. Okay. और कुछ चीजें लिखते हैं हम लोग, मतलब इससे कंक्लूजन कुछ और आएगा अपने को. तो v इक्वल टू क्या आएगा? ds by dt implies dt क्या आएगा? ds, है क्या नहीं? ds. Yes, sir. आएगा. अभी we can apply integrals on both sides. अच्छा, before going into that let me just I'll go to that later, don't worry. let us just discuss. ठीक है, अगर आपको s ऐसे मिल गया, s equals to 5t cube 7t square plus 4t
plus 9. आप देख के can you just look at the equation and guess whether it is uniform motion or non-uniform motion? Yes, sir. बोलिए. Non-uniform motion. This is non-uniform motion. कैसे गेस किया आपने? क्योंकि अगर दो बार डेरिवेटिव निकालोगे फिर भी t क्लियर? Yes. सी Yes, sir. अगर पहला डेरिवेटिव निकालोगे तो वेलोसिटी आएगा, तो v इक्वल टू व्हाट? ds by dt. Yes. कितना है? Yes, sir. बोलो. You should be able to tell directly. No. 15t square 15 Square. T square 15t square plus 14 T 14 plus 4. 4. वो आगे वेलोसिटी आपका. ठीक है. नाउ एक्सेलरेशन फाइंड करो नेक्स्ट स्टेप में. एक्सेलरेशन इज dv by dt. dt. बोलिए क्या है dv by dt? 30t plus 30t plus 14. एवरीबॉडी सबको समझ में आ रहा है कैसा निकालना है डेरिवेटिव, राइट? Yes, So- sir. Yes. We practiced a lot already. You should be able to do this now. These are simple things. Now tell me, is it a constant or variable? variable Very good. कैसे पता It's a variable. कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अगर आंसर में t दिखाई दे रहा है आपको तो दैट मींस इट इज ए वेरिएबल. ठीक है. a इज ए Variable. वेरिएबल. वेरिएबल a इज वेरिएबल मतलब वो हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म Motion. मोशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, ये सेम क्वेश्चन में you can answer several things. You can answer several things. For example, if he asks you what is next question. First question क्या है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और uniform यूनिफॉर्म. आंसर कर दिया आपने. क्या आंसर किया? non-uniform motion तो ये नॉन यूनिफॉर्म है. फर्स्ट आंसर कर दिया. अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. Actually, you can ask so many questions in this equation. Second question, what is the? अच्छा, let me just correct it. यहाँ पे मैं s नहीं लिख सकता, मुझे x लिखना पड़ेगा इधर. x. Can anyone guess why? क्यों नहीं लिख सकता मैं वहाँ पे s? x क्यों लिखना है? हाँ? I should write this as position, not as displacement. Why? Can anyone guess? sir. So because One हमने time Change in position. हाँ हाँ हाँ. नहीं नहीं, यहाँ पे s लिखने में प्रॉब्लम क्या है? x क्यों कर दिया मैंने? चेंज क्यों कर दिया? सर क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नहीं, नॉन यूनिफॉर्म से कुछ लेना, सब वन डायमेंशनल. डायमेंशन से कुछ लेना देना नहीं है. मैंने बोला था आपको कि हमेशा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा. देखो s1 हमेशा जीरो है, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. s1 हमेशा क्या होता है? जीरो होता है. क्लियर? ये 0 मीटर है. सॉरी, ये क्या है? 0 मीटर. देखो इनिशियल 10 मीटर है, फाइनल 15 है, बट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0. फाइनल है 5. यहाँ पे इनिशियल -5 है, पोजीशन फाइनल 20 है, बट इनिशियल 0 है और फाइनल 25 है. दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. यहाँ पे अगर मैं 0 डालूंगा t की जगह, ओके, तो आपको 9 आएगा. दिखाई दे रहा है वहां पे? yes sir 0 is always 0, but x of 0 should not be 0. तो my question वही है भी, what is the initial position? आंसर बोलो. इनिशियल पोजीशन कैसे फाइंड करोगे आप? You just put x of 0. इनिशियल मतलब क्या? Starting. Is equal to, अच्छा, x of t क्या था बोलना फिर से? Let us copy. pi t cube 20 square plus 4t Plus 9. plus 9. Now what is initial position?
x of 0 9. बोलिए 9. 9 sir. of 0 is equal to 9 meters. अच्छा मैंने यूनिट दिए नहीं यहाँ पे, मेरे को यूनिट देने पड़ेंगे, तो ये 9 मीटर है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा v के यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड, और ये एक्सेलरेशन क्या आएंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है. ओके, तो ये आ गया 9 मीटर, ये आ गया आपका 9 मीटर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए पहले वेलोसिटी का फंक्शन ले लो। वेलोसिटी ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज रेस्पेक्ट टू टाइम क्या है? बोलिए। 15t स्क्वायर Sir 4. 15t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 4, राइट? Yes sir. Yes, एवरीबॉडी फॉलोइंग? yes, sir. Plus 14t plus 4. ये था आपका वेलोसिटी। Yes sir. अच्छा, इनिशियल के लिए क्या करोगे? v ऑफ 0. 0. कितना आएगा? 4. 4. 4 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड लिख दो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करो मेरा? बोलिए, Acceleration. कौन सा? Initial. इनिशियल एक्सेलरेशन। बोलिए क्या है? व्हाट इज ए ऑफ टी? आप यहाँ पे देख के लिख सकते हो ए ऑफ टी क्या है। 30t Plus 14. 14। व्हाट इज इनिशियल एक्सेलरेशन? Sir 14. 14. या 14. इनिशियल एक्सेलरेशन इज 14, 14। sir. यूनिट्स आर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Second square. Okay, fine. Now I can ask you one more question. Fine. And ये fifth question में जो है ना, I'll ask you 3 question in 1 question. ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. So fifth question is this. Find or what are the displacement, velocity, and acceleration at t equals to 1 second. Now कौन से डिस्प्लेसमेंट, कौन से वेलोसिटी और कौन से एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहाँ पे? एट 1 सेकंड बोला इसने, एट। जब भी वर्ड एट आएगा तो किसकी बात हो रही है वहां पे? Instantaneous. वेरी गुड, इंस्टेंट की बात हो रही है। तो जब भी वर्ड एट आएगा ना, तो एट दैट इंस्टेंट की बात कर रहा है। कौन से इंस्टेंट की बात कर रहा है? जब 1 सेकंड One. का टाइम हुआ आपका, तो ये बात हो रही है इंस्टेंटेनियस पैरामीटर्स की। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. इसका मतलब व्हाट इज ही आस्किंग? ही इज आस्किंग फर्स्ट s of 1, then he is asking v of 1, then he is asking, sorry, v of Yeah, fine. 1, then he is asking a of 1. तो s of 1 क्या है बोलिए? Let us see what is s first. 5t cube plus 7t square plus 4t plus 9 है क्या नहीं? Yes sir. तो बोलो Yes, क्या? sir. 5 1 cube plus 7 1 square plus 14t. no 4t ना, 4t plus 9। Four. तो बोलिए क्या आएगा? 25. 25. 25. तो इसका है मीटर्स, तो आएगा 25 मीटर्स। तो 1 सेकेंड पे किधर रहेगा पार्टिकल? Sir 25. 25। तो मैंने s लिखा, x नहीं है, वो x है, सॉरी। ठीक है, समझ में आई बात? Yes sir. तो I'll change the question, I'll write it as position। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाद में देखते हैं। पोजीशन, ठीक है, समझ में आई बात?
ओके, Yes, sir. नेक्स्ट v ऑफ 1 बोलिए क्या है? तो v के लिए v देखो क्या है, 15t स्क्वायर 14t 4 है क्या नहीं? 15t स्क्वायर 14 4 14t 4 33 मीटर्स पर सेकंड, तो ये आ गया 33 मीटर पर सेकेंड। 33 मीटर पर सेकंड। चेक किया आपने? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन है क्या? 30t प्लस 14 30t square t plus 14 और 44 44 44 में 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या नहीं? yes, yes sir. नो द थिंग इज, अभी जो हमने फाइंड किया सब वो सारे क्या है? इंस्टेंटेनियस है। क्या है? instantaneous इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है क्या नहीं? ये सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। अच्छा, मेरे को ये बोलना व्हाट इज s of 0 दिस, सॉरी s of 1, s of 1 equals to what? 25 No, 25 पे it is x of 1 minus x of 0, change in position ना, इस डिस्प्लेसमेंट yes, है क्या? तो क्या आएगा आपका? 25 5 minus 0 25. माइनस 0 9 9 यस देखो, इनिशियल पोजीशन 9 का इधर, yes, sir. तो वही सब्ट्रैक्ट करना है ना आपको। यस सर। तो कितना आएगा? 25 minus 9 बोलिए। 16 प्रॉपरली दिस इज x एंड दिस इज x। अच्छा, ये है आपका 25 मीटर्स और ये है आपका 9 मीटर्स which is equal to 16 meters. So you are getting the difference, you are understanding the difference between displacement and position, right? yes sir Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yeah, bolo. Any doubt? No, sir. no sir Okay, just let me check it once. Okay, I think we I'll just erase this because I'll do it again. Yesterday I discussed it after the class. Anyway, अच्छा, मेरे को ये बोलिए आप लोग कि सेम क्वेश्चन विल कंटिन्यू। अगर उसने बोला कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, अच्छा देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफरेंट। सी, क्वेश्चन नंबर 6 में ही इज आस्किंग व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, जब एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो एक इंस्टेंट देगा कि टाइम इंटरवल देगा? Time interval. टाइम इंटरवल देगा। क्यों? क्योंकि एवरेज के लिए क्या चाहिए आपको? एक टाइम इंटरवल Total चाहिए। time. जी सर व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल t equals to 0 seconds to t equals to 1 seconds? समझ में आया? yes sir Yes, और sir. I can say 0 seconds to 1 second 1 second. let me just write down 0 second to 1 second. तो ये है आपका टाइम इंटरवल 0 second to। तो हाउ विल यू फाइंड एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन अलग है। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है क्या? total Total distance distance by total time upon taken. total time taken डेल्टा s by delta by delta t डेल्टा s बाय Delta delta t. You don't write ds by dt for average. Are you getting my point? yes sir अच्छा, Yes, sir. अच्छा मेरे को ये बोलना कि is delta s and delta x equal? Yes. Delta s and Yes, delta sir. x are
इक्वल, क्योंकि मैंने बोला ना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन Position is same. पोजीशन सेम रहेगा. ओनली डिफरेंस इज इनिशियल पोजीशन नॉन जीरो होता है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा जनरली. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. अब लेट अस सी व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे अभी? वी एवरेज, sometimes v average is written by v bar but I don't recommend that because वो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. खैर anyway, delta x can be written as x2 minus x1 One. minus x initial by t final T2 minus T1. Minus T. minus t initial. Now the denominator is very easy to write because the final time is 2 seconds. Sorry, final time is 1 second. Initial 1 time second. is 0 seconds. 0 seconds. अच्छा, x फाइनल x इनिशियल भी तो फाइंड किया था हमने अभी. कितना था x फाइनल? तो x आई एम राइटिंग दिस इज Sir, 9. x of 1, दिस इज x of 0 है कि नहीं? तो ये हो गया आपका v एवरेज. तो ये अभी फाइंड किया था आपने 25 minus 9, 16. 25 minus Yes. 25 meters minus 9 meters, right? 9 meters. इधर भी आप यूनिट्स लिखेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ 1 सेकंड. अच्छा ठीक है, लेट मी जस्ट राइट 2 सेकंड 1 सेकंड minus 2 seconds, राइट? Yes, sir. ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे बाय 1 सेकंड minus 1 2 second. तो वी एवरेज कितना आ गया आपका? Therefore V average equals to 6 meters by 1 second. Sir, हाँ पहले तो आप 1 माइनस 0 लिखे थे. हाँ 0 0 इट इज 0 राइट. ओके, तो ये हो गया 16 meters per second. समझ में आई बात? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, you observe that average and instantaneous is never same or need not be same, I can say, right? Yes, sir. तो v of 1 equal to कितना आया था आपका? 33 meters per second. दिखाई दिया आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो v of 1 आया था 33 meters per second और v of 0 क्या आया था आपका? Sir, 4 शायद. let us see v of 0 क्या आया था आपका? v of 0 क्या आया था? यहाँ 4 meters per second दिखाई दे रहा है आपको? जी sir. Yes, 4 sir. meters per second. But v average from 0 to 1 second कितना आया? 33 minus 4. 16. No. अभी फाइंड किया ना आपने? जी sir. Yes, sir. 16. v average कितना आया? 16 meters per second आया. Now can you see that it is somewhere between 4 and 3? Yes, sir. Yes, sir. बट Yes, sir. एवरेज जो है ना इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 करके नहीं कर सकते इधर. कैन यू सी दैट? Yes, sir. Why? Because this is non-uniform motion. I'll explain that later. What I'm trying to say. आपने स्कूल में ये सीखा था, राइट? क्या सीखा था? V average is equal to V plus U by 2. Plus final by 2. Yes, sir. This is true only for. This is Form. true only for uniform motion. Uniform motion. For non-uniform motion, it's not true. For non-uniform motion, it's not valid. ठीक है, clear? Yes, sir. So यहाँ पे लिखूंगा it's valid only for uniform motion. I'll explain that later. अच्छा, let me ask you some quick questions. How to identify whether motion is uniform? Straight line. No. Listen to me carefully.
Listen to me carefully. Okay. So, for the motion to be uniform, the condition is what? Equal distance and equal distance. Acceleration should be constant. Acceleration should be constant. Acceleration Should be constant. should be constant. Later, when you learn the vectors, when you learn the topic of vectors and motion in 2 dimensions, you will understand that not only the magnitude but also direction of acceleration should be constant. Anyway, now in 1 dimension, you just keep in mind that acceleration should be constant. Clear? Okay. Yes, sir. So, for example, if A equals to 9.8 meters per second square, then you can identify this motion as Uniform. uniform motion. ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. Okay, next. If A equals to 2t meters per second square, ये कौन सा मोशन है? Non-uniform motion. Non-uniform, sir. यूनिफॉर्म. अच्छा, अगर A equals to 10 sin of 2 pi t है, ये कौन सा मोशन है? Non-uniform. Non-uniform. Why? Because non-uniform. क्यों? क्योंकि आपको टाइम के साथ वैल्यू बदलेगी एक्सेलरेशन की. That's why. Clear? समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, next question. If v equals to 5 meters per second. अच्छा, ये किसकी बात हो रही है? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की बात हो रही है. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे Velocity as a function. वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन. ये कौन सा मोशन है बोलिए? Non-accelerated. ये है यूनिफॉर्म. रीजन बोलूं? Uniform. Sir, acceleration 0 रहता है. v of t अगर 5 है तो एक्सेलरेशन आएगा 0. 0. 0 कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 0 भी तो कांस्टेंट है. तो ये कौन सा मोशन हो गया? Uniform. Uniform motion. ये हो गया यूनिफॉर्म. नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर v of t is equal to -7t है, Non-uniform. सोच के बोलना. No, sir. Uniform है, sir. यूनिफॉर्म क्योंकि a of t क्या आएगा? sir -7 होगा. -7 होगा क्योंकि डेरिवेटिव होगा v of t का, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या आएगा? Sir, uniform. यूनिफॉर्म. ये भी होगा यूनिफॉर्म. ओके, नेक्स्ट. देयर इज नो स्पेस. कहाँ गया ये? जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, यहाँ पर ये है ना. ओके, एनीवे वी कैन डिलीट इट लेटर. अच्छा, ये हो गया. अच्छा, नेक्स्ट. अगर v of t is equal to 20 t square meters per second, तो बोलिए Non-uniform. Sir, non-uniform. क्योंकि a of t कितना आएगा? Sir, 40t. 40t. 40t आएगा. 40t meters per second square आएगा. सेकंड स्क्वायर है. तो ये हो गया
नॉन यूनिफॉर्म है क्या नहीं? समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ये हो Yes, गया sir. नॉन यूनिफॉर्म, ये हो गया Uniform. क्या हो गया? ये नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform. रीजन क्या है? क्योंकि एक्सेलरेशन आया वेरिएबल, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आई बात? जी Yes, सर। sir. आई एम आस्किंग क्विक क्वेश्चंस अगेन। इफ s of t, अगर s of t और x of t की बात करते हैं, x of t पोजीशन की बात करते हैं, अगर x of t 100 मीटर है तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? Uniform. 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 क्योंकि देखो v of t क्या आएगा? Uniform. जीरो zero. आएगा। और a Zero. of t क्या आएगा? सर 0। जीरो। Zero, sir. इसका मतलब वो पार्टिकल वहीं बैठा हुआ है, कुछ नहीं, मूवमेंट। तो वेलोसिटी भी Yes, जीरो sir. आएगी, एक्सीलरेशन भी जीरो Zero. आएगा। Zero. जीरो भी तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? Uniform. Uniform. यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर माय व्हाट माय क्वेश्चन विल बी नाउ? बोलिए, ये बोलिए, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसे है? p ऑफ t क्या है? VFT equals to 25. 25। अच्छा, ये मीटर रख दो, 25 मीटर्स पर सेकंड, इसका मीटर कर दो। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? सर 0 आएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका मोशन हो गया Uniform. यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन Sir? करेंगे। Sir? क्या? Sir, what is x here? पोजीशन x इज ऑलवेज पोजीशन, है कि नहीं? सर वो तो r होता था ना? r बोल सकते हैं, अगर वन डायमेंशन में कर रहे हैं तो x भी बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं, आप z भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स कौन से एक्सिस के अलोंग है आपका वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है? Okay, sir. हाँ, now tell me, can anyone guess what will be my question now? बोलिए। -7t स्क्वायर मीटर। अब बोलिए, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? सर यूनिफॉर्म। Non-uniform. यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि देखो v ऑफ t कितना आएगा? -14t. Minus 14t. मीटर्स पर सेकंड आएगा। ठीक है, Yes, sir. तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? सर 0 -14. -14 सॉरी। Zero. कितना आएगा? -14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो कांस्टेंट आया कि वेरिएबल आया एक्सेलरेशन? Yes, sir. क्या आया? Constant. तो ये हो गया यूनिफॉर्म। अच्छा, अगर x of t is 5t क्यूब, तो 20 यूनिफॉर्म। square. हाँ, 15 is Non-uniform. सर नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform, sir. Non-uniform, sir. non-uniform. 30t. तो आ गया नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform. So now you can just look and predict whether the motion is uniform or non-uniform. Are you getting my point? देखो, Yes, sir. suppose a equals to t square, a equals to 2t, a equals to 7. इसमें यूनिफॉर्म कौन सा है? सर A equals to 7. तो यूनिफॉर्म a equals to 7 यूनिफॉर्म है कि नहीं? Yes, sir.
Yes, sir. Now v equals to t cube, v equals to 100t, v equals to natural log of t. इसमें यूनिफॉर्म कौन सा है? V equals to 100t. v इक्वल टू 100t यूनिफॉर्म है. क्यों? क्योंकि एक बार डेरिवेटिव जब निकालोगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा. इधर Yes, कांस्टेंट नहीं आएगा एक्सेलरेशन, इधर कांस्टेंट नहीं आएगा, है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट. या एनी डाउट? No, sir. ओके, No, sir. नाउ लेट अस गो फॉर डिस्प्लेस पोजीशन. ये है आपका Sir. सर आपका माइक म्यूट हो गया. Sir, या इसमें कौन सा यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करता है? First one, sir. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म. फर्स्ट वन इज Yes, sir. यूनिफॉर्म. Uniform. रीजन इज अगर दो बार डेरिवेटिव निकाला आपने तो एक्सेलरेशन आएगा. तो इसका डेरिवेटिव अगर दो बार निकालोगे तो क्या आएगा? पहला डेरिवेटिव क्या आएगा? v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर 3t square. प्लस 4t आएगा, राइट? Yes, sir. दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा? 60 60 आएगा. तो यूनिफॉर्म है क्या नॉन यूनिफॉर्म? plus 4. हाँ, यूनिफॉर्म. नहीं, आपका एक्सेलरेशन कितना है? Non-uniform, sir. तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म. तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये भी नहीं है यूनिफॉर्म. और इसका क्या आएगा बोलो? v कितना आएगा? 10 -10 cos t. -10. और एक्सेलरेशन कितना आएगा? -10 sin t. तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं? Yes, sir. क्यों? क्योंकि t पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, इसलिए ये भी नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं? Yes, sir. ये कितना है? इधर कितना आएगा? v इक्वल टू 7/t आएगा, Yes, sir. है कि नहीं? और a इक्वल टू कितना आएगा? -7/t स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1/t का 7/t स्क्वायर है. तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है. तीनों नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं? यस सर. Yes, sir. ऑल थ्री आर नॉन यूनिफॉर्म. ऑल थ्री आर नॉन यूनिफॉर्म. अच्छा, अगर x इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9 है, ये आएगा यूनिफॉर्म. वाई? Yes, sir. इसका v आएगा कितना? 20t प्लस Plus 12 और 12. a आएगा. 20, sir. तो ये क्या है? कांस्टेंट है. Sir, हाँ, बोलिए. should we leave 12? और 12 का डेरिवेटिव क्या है? 0 0. इसलिए 20 आया. Okay, sir. ये क्या है? यूनिफॉर्म है Uniform. क्या नहीं? सर हाँ, सर अगर पोजीशन कोई ऐसा नंबर है जैसे 20t, सिर्फ 20t, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया या नॉन यूनिफॉर्म? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता. मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता है. x इक्वल टू 20t ले लिया आपने, तो v कितना आएगा? 20. 20. v 20 आएगा. और v 20 आया तो a कितना आएगा? The 0. 0 0. Zero. नहीं है.
Constant. जीरो कांस्टेंट है कि नहीं है? जीरो यस सर Yes, sir. कांस्टेंट कांस्टेंट ही तो है। तो ये क्या है? रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म Uniform. Uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन। कौन रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन? Acceleration. ये और ये Sir, तीनों। this सी x is equal to 20t represents uniform motion, v equals to 20 represents uniform motion, a equal to 0 represents uniform motion। ठीक है, समझ में आया? yes, sir. x equal to Yes, sir. 10t square plus 12t plus 9 represents uniform motion, v equals to 20t plus 12 represents uniform motion, a equals to 20 represents uniform motion। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, a is equal to 60 represents non-uniform motion, v equals to 3t square plus 4t represents non-uniform motion, and x is equal to t cube plus 2t square plus 7 represents non-uniform motion। समझ में आई ना बात? Yes, sir. Yes, sir. Okay, clear? Okay, now for uniform motion, गौर से देखना आप। For uniform motion, acceleration is constant, is constant। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Definition of acceleration. Now what is physics क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फिजिक्स में या तो कोई भी चैप्टर में या तो आपको डेफिनेशन रहेगा या नहीं तो लॉ रहेगा। ठीक है, यू विल हैव आइदर ए लॉ और ए डेफिनेशन। Definition. So you will either have a law or a definition. Okay, so the definition of acceleration is what? Rate of change. Rate of change of velocity. Is rate of Change of velocity. rate of change of velocity। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन ए लॉ और डेफिनेशन an equation in physics, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली? a equals to Velocity by time. Delta V. dv by dt। डेल्टा v तो एवरेज देगा, dV by dt. एवरेज में इंस्टेंटेनियस चाहिए है कि नहीं? तो dv by dt आ गया। Yes, sir. So I am writing here, देखो तो सारी फिजिक्स ऐसे ही है। सारी फिजिक्स में पहले यू विल हैव ए डेफिनेशन और No. यू विल हैव ए डेफिनेशन और लॉ। आपको या तो Law. डेफिनेशन रहेगा या तो लॉ रहेगा। लॉ के बाद एक इक्वेशन आएगा और ये इक्वेशन जनरली कौन सा इक्वेशन आएगा? Algebraic. नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है? Differential. Differential equation. एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन? बिकॉज उसमें डेरिवेटिव है। Yes, sir. Yes. So what is the differential equation? Let me read it again. ये है आपका equation. So differential equation is an equation with Which gives derivation. a Derivative. derivative. Now what do? We solve a differential equation. We solve a differential equation. ठीक है, now solving a differential equation involves क्या?
So derivative Integration. इंटीग्रेशन, or integration. इंटीग्रेशन। तो आपको अगर वो जो डेरिवेटिव है निकालना है तो डेरिवेटिव का उल्टा करना पड़ेगा, वो है इंटीग्रेशन। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, तो a इक्वल्स टू क्या? dv by dt. DT. T. now what you do is, this is a differential equation, I need to solve. Before solving I'll separate variables। क्या करूंगा मैं? वेरिएबल्स को सेपरेट करूंगा, ठीक है? I'll separate variables, watch carefully। तो वेरिएबल्स दो है यहाँ पे, एक v है और एक t है, क्योंकि आपके पास dv है और dt है, तो मैं सेपरेट कर लूंगा। तो सेपरेट क्या कैसे करते हैं, बोलिए? a A dt is equal to dv. इक्वल टू dv। अच्छा, आपके पास अगर कोई ऐसा वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल t है ये इक्वेशन में, तो t हमेशा dt के साथ रखो। अगर v है आपके इक्वेशन में तो उसे हमेशा dv के साथ रखना, ठीक है? समझ में आई बात? आई विल गिव यू वन एग्जांपल लेटर। नाउ सेपरेट हो गए वेरिएबल्स। क्या किया मैंने? A dt equals to dv. नहीं, मैंने क्या किया यहाँ पे? Separate. So separating the variables. ओके Yes, sir. ओके, अभी इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे करें? So दोनों साइड इंटीग्रल लगाओ, integration. दोनों साइड इंटीग्रल लगाना। Yes, sir. नेक्स्ट इंटीग्रेट, अप्लाई। Sir, Integration. why we are integrating? क्या? Sir, why we are integrating? टू सॉल्व। I'll tell you। मुझे क्या चाहिए अभी? v चाहिए, मुझे v चाहिए, और ये इक्वेशन में क्या है? dv है क्या नहीं? Yes, sir. सी आई नीड टू फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है यूनिफॉर्म मोशन में, आई नीड टू फाइंड। तो मेरे को v चाहिए, v चाहिए तो dv को इंटीग्रेट करूंगा तो v आएगा ना मेरे को। Yes, sir. Okay, so let me just write it in this yellow color only। Apply। Okay, integrate on both sides। तो क्या आएगा बोलो? a dt लेफ्ट साइड पे है, राइट पे क्या है? dv है। DV. और इंटीग्रल लगाऊंगा इधर और इधर दोनों। अब इंटीग्रल लगाने के बाद लिमिट्स भी लगाना है ना, तो नीचे Yes. हमेशा इनिशियल लिमिट लगाते हैं, ऊपर हमेशा फाइनल। तो इनिशियल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका? DT. dt टाइम है ना, तो इनिशियल टाइम Yes. हमेशा क्या होगा? इनिशियल टाइम। Zero, sir. 0. और फाइनल टाइम क्या होगा? t। Yes, sir. अच्छा, इधर क्या है? इधर क्या है? U to v. वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी इनिशियल हमेशा u होती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. जब भी कांस्टेंट रहेगा, a कांस्टेंट है, कैसे पता? कैसे पता है a कांस्टेंट है? बोलिए बोलिए। a इज ए कांस्टेंट, कैसे पता भाई? हाउ डू यू नो a इज ए कांस्टेंट? वो अलग है ना सर? क्या है? हमने इसके लिमिट्स तो दिए हैं नहीं। नहीं, a कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्यों? स्टार्ट Sir, कहाँ से because किया? time is zero. Because it's uniform. Because it's No. uniform. देखो यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म। a कांस्टेंट है, a इज ए कांस्टेंट। क्यों? यूनिफॉर्म। uniform. therefore comes out of इंटीग्रल, है क्या नहीं? कांस्टेंट हमेशा Yes, बाहर sir. आ जाता है ना, तो क्या आएगा आपका? Yes, sir. क्या आएगा? a बाहर आ गया, DT. 0 to DT. dt। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 1 है क्या नहीं? Yes. Yes, sir. इधर भी देखो, यहाँ पे तो कुछ है नहीं,
तो क्या है 1 है dv u2 v है कि नहीं? Yes. Yes, sir. 1 का इंटीग्रल क्या है बोलना? T. 1 का इंटीग्रल क्या है? t। अगर x dx रहता तो x लिखते, dt रहा तो t लिखते, dv रहा तो v लिखेंगे, है कि नहीं? V. Yes, Yes, sir. sir. तो क्या आएगा आपका a 1 का इंटीग्रल है T. t, लिमिट्स क्या डालोगे? 0 to t, है कि नहीं? 0 to T. 0 to t इक्वल टू, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल क्या है? v, V V. लिमिट्स क्या है? U to U to V. u to v। U to V. तो यहाँ क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड आएगा at AT. UV. UV. U minus. UV, sir. V v minus. minus u, v Minus V U. minus 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 u। यहाँ पे भी t minus 0 है, मैंने किया नहीं। हाँ, तो क्या आ गया? v equals to A is equals to V minus U by T. no v equals to minus u, इधर आके प्लस हो जाएगा, U ये plus plus AT. at U plus AT. आ गया। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो शुरू करना से क्या आपने डेफिनेशन से, डेफिनेशन से क्या है आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से शुरू किया आपने इधर, हाँ Yes, sir. क्या आया? Yes, sir. एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया, क्या आया आपको? है क्या? क्या था? ये क्या था? A is equal to dV by dt. डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके नहीं? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व किया आपने, कैसे सॉल्व किया? वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया आपने, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद आपको v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, लास्ट में v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे वी विल कंटिन्यू। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, अगेन फिर से डेफिनेशन देखते हैं। फिजिक्स में क्या करते हैं पहले? सबसे डेफिनेशन। Definition. डेफिनेशन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू व्हाट? बोलिए। ds by dt. Dx by dt. ds by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलिए। Displacement or position. Placement. तो डेफिनेशन, ds by ds लिखे आपको, dt आना ना। हाँ हाँ मैं करेक्ट करूंगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन है हाथ में, तो डेफिनेशन मैंने मैथमेटिकली लिख दिया, ds by dt लिख दिया। dt. अच्छा, अभी तो v फाइंड किया था आपने, क्या था वो? u plus at। U U plus plus AT. AT. तो लेट मी राइट डाउन। तो क्या हो गया आपका? u Some plus disturbance is coming. now now is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what did I do now? What did I do? Substituted V. v अभी जो फाइंड किया था हमने u plus, वो इधर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर? नाउ व्हाट टू डू नाउ? वी हैव ए, कौन सा इक्वेशन है ऊपर? Differential equation. Differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, हाउ टू सॉल्व? इंटीग्रल Now it's separate. सॉल्व बाय सेपरेटिंग वेरिएबल इंटीग्रल। sir sir why do we use integral? We must use derivation here. नो, सी आपको, आपका देखो, पहले ए का डेफिनेशन था आपके पास, उससे आपका एम था v निकालना, v का इक्वेशन निकालना। तो v का इक्वेशन निकाल दिया आपने। you got इक्वेशन ऑफ
v, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ t। तो कैसे करोगे आप? आपके पास तो dv था मगर चाहिए v, dv निकाल के अगर v लाना है तो इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा ना। ओके सर, मतलब हम ऐसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं? इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं आप, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैन यू सी? यस सर। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। सी, देखो मैं बताता हूँ व्हाट इज द एम, आई विल टेल यू। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, यू हैव ds here, you have dt here, but I need s as a function of time। s टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा वो फंक्शन चाहिए मुझे, दैट मीन्स आई नीड s। मतलब मेरे को ds निकाल के मुझे क्या चाहिए? अभी s चाहिए। अगर ds निकाल के s चाहिए तो मेरे को इंटीग्रेट करने पे ही तो आएगा। सी फॉर एग्जांपल मेरे पास dx है तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये x आएगा ना। अगर मेरे पास dt है इंटीग्रेट करूंगा तो t आएगा ना। अगर मेरे पास ds है इंटीग्रेट करूंगा तो ऐसा आएगा ना। यस यस समझ में आई बात? यस देखो, सर। यहाँ पे लिमिट 0 to x है, यहाँ पे लिमिट 0 to t है, यहाँ पे लिमिट 0 to s है। तो 1 का इंटीग्रल x है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल t है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल s है। ऐसे कैसे आया? कैसे आया? Sir, your voice is not coming. सर क्लियर। Now is it clear? Yes, sir. यस So the thing is, if you integrate, you can convert by integration. You can get x from dx, correct? T from dt, उसके बाद and एस फ्रॉम डी s from ds and so on and so forth. You can clear? यस सर समझ में आई बात? तो मैं अभी कंटिन्यू करूं u plus at is equal to ds by dt का। यस सर So u plus at equals to ds by dt, है क्या नहीं? Now what do I do? Separate the variables, right? Yes, sir. So what do I get? U dt plus u plus dt सबको मल्टीप्लाई करेगा dt equals to, dx. यस now integrate on both sides। क्या है? Integrate on both sides. Integrate on both sides, so what do you get? Sir, ut तो इधर भी इंटीग्रल लगा दिया, इधर भी इंटीग्रल लगा दिया। इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? मैंने क्या बोला था? यू You doing? 0 See, initial position may be something, but initial displacement is always 0. That's why I'm doing it. Acha. Now I will separate the integrals just for the sake of understanding. You can directly also do if you want. तो ये आएगा 0 to t u dt plus 0 to t at dt equals to 0 to s, इधर 1 बच गया, ds आएगा। ठीक है? अच्छा, ये u बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो बाहर जाएगा। तो क्या आएगा बोलो? u टी ut, sir. यू टी ठीक है, I'll write the extra step for the sake of some students.
इफ इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो, यहाँ पे क्या बाहर आएगा, a कांस्टेंट है, बाहर आएगा dt dt माइनस, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है तो आई राइट 1। अच्छा यहाँ पे बोलो u इंटू क्या आएगा, u इंटू T 1 का इंटीग्रल क्या है, T T 0 t है, लिमिट डाल दिया 0 टू t प्लस a, t का इंटीग्रल क्या है, Sir, t square by 2. T t square स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर का क्या है, t क्यूब बाय 3, t पावर 10 का क्या है, t पावर 11 बाय 11, तो t पावर 1 का क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2। समझ में आई बात? yes sir। yes sir तो लिमिट दूसरे कलर में लिखते हैं। ओके तो यहाँ पे लिमिट्स क्या डालोगे, 0 टू t इक्वल्स टू, बोलिए S वन का इंटीग्रल क्या आएगा, s, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल s है, और लिमिट्स क्या आएंगे यहाँ पे, 0 to s 0 टू s, तो यहाँ क्या आ गया, ut माइनस 0 इक्वल्स टू a बाई 2, कॉमन ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, lower limit इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू s माइनस 0, क्लियर? s minus 0 yes sir तो क्या हो गया ये, ut plus half ut 0 Half of 80 square equals to s. half 80 square equal to s. So what did you get? You got s as a function of time. You got s as a function of time function of time Clear? yes sir yes Okay. Now one more derivation I'll do, but here in this derivation you'll use a trick. Okay. Now we will be deriving this equation. Which equation? V square minus u square equals to 2as. Now observe that there is no t. There is no t one second. There is no t in the equation. Okay. Now definition of acceleration is what? rate of change of velocity ds by dt. Oh, sir. dv by dt. According to definition. So I'm not writing definition again. We already saw so many times. So according to definition, acceleration is what? A equals to, बोलिए, dv by dt. ds by dt A equals to dv by dt ना? dv by dt yes sir dv by dt तो v होगा. Okay, A is equal to dv by dt. Now the problem is I don't want t. Okay, मुझे ये नहीं चाहिए. Okay, so I want to eliminate t. मेरा एम है t को एलिमिनेट करना somehow. ठीक है, इंटीग्रेट करने से पहले तो watch carefully. I'll use a trick. The trick is this. See, a I'll write as it is. Can I write dv by dt as dv by ds into ds by dt? yes Yes, sir sir. Because ds will cancel and anyway you will get समझ में आया? yes sir तो let me write in another color, you'll understand. तो यहाँ पे है ds और ds. तो obviously आपको जो पहले था वही आएगा. देखो dv by dt ही आएगा, ds कैंसिल होके. समझ में आई बात? yes yes sir yes sir But what is ds by dt? Sir, velocity. या समझ गए? तो ये इक्वेशन चेंज होके क्या बनेगा? dv by ds into v. A is equal to dv by ds into v. समझ में आई बात? yes yes sir sir Yes, Now sir. next step is
Any doubt? What is this? Velocity. तो वही किया मैंने कि उसको रिप्लेस करके v रख दिया. समझ गए बात? Yes, sir. Now what to do? Separate the variables. Separate the Variables. अच्छा, जो कांस्टेंट है वो तो कहीं भी आ जाएगा. a कांस्टेंट है ना, Yes, sir. तो लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड रखो फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे भी कांस्टेंट ही रहेगा. तो यहाँ पे a ds आ गया इक्वल टू v dv. इट इज कंपल्सरी टू कीप दिस v along with dv. समझ गए बात? Yes, sir. Yes, तो sir. ये जो v है ना मस्ट बी प्लेस्ड विथ dv. DD. Tau I. तो सब वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है. क्या है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड. जब वेरिएबल सेपरेट करोगे along with dv, v must be placed along with dv. अगर t रहा तो किसके साथ रखोगे? dt के साथ. समझ गए? Yes, sir. अगर t क्यूब रहा तो किसके साथ रखोगे? t के साथ, dt के साथ. अगर log v रहा तो किसके साथ रखोगे? dv के साथ. जो भी है v का फंक्शन अब v के साथ dv के साथ रखोगे. समझ में आई बात? Yes, sir. Okay, just give me a second. Okay, now what do you do? Now integrate. Integrate on both sides. तो क्या होगा बोलो? So ADS equals to V dV. मैं इंटीग्रेशन इधर लगाऊंगा और इधर लगाऊंगा. इधर बोलना लिमिट्स क्या है? Sir, 0. 0 से स्टार्ट होगा. डिस्प्लेसमेंट हमेशा S. यहाँ पे इनिशियल S. U to B. U to V. U to V. अच्छा, ये A कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. Yes, sir. तो इसलिए S. बोला कांस्टेंट आप कहीं भी रख सकते हैं. यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ds. 1 बचा हुआ है ds, और लिमिट क्या है? 0 to S इक्वल्स टू, बोलो यहाँ पे कुछ बाहर आएगा. यहाँ पे No, sir. v कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वेरिएबल है, वो है क्या नहीं? u Yes. to v. अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन बोलो क्या है? S. Sir, S. 1 का है s, और लिमिट्स क्या है? 0 to S. 0 to S. 0 to s. अच्छा, v का इंटीग्रेशन क्या है? Sir, V square by 2. v स्क्वायर बाय 2, V, sir. और लिमिट्स क्या है? u to v, है क्या नहीं? Yes, sir. नाउ as जो है उस पे लिमिट्स अप्लाई करो. क्या आएगा? s माइनस 0 इक्वल्स टू 1/2 कॉमन ले लो. v की जगह अपर लिमिट क्या है? v स्क्वायर. लोअर लिमिट क्या है? u स्क्वायर. अपर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने. तो आपका इक्वेशन क्या आ गया? अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो आपका प्रूफ आ गया और आपने आंसर ला लिया. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. तो क्या है मेथड? क्या है हमेशा बोलो? व्हाट इज द मेथड? Integration. आपके पास एक लॉ रहेगा या डेफिनेशन रहेगा. डेफिनेशन लिखोगे. डेफिनेशन लिखने के बाद क्या करोगे? Differential लिखिए उसका. डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे और आपको आंसर आ जाएगा क्या है फ्यूचर में, टाइम के साथ क्या होने वाला है. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. sir. Yes, sir. I'll give you one last example and then I'll end the class. Tomorrow we'll discuss about graphs. I'm not taking that example from physics. I'm taking that example from biology. ठीक है? Suppose population of bacteria. Population of bacteria. In case of unlimited resources. देखो, पॉपुलेशन ग्रो होगा कंटिन्यूअसली अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड है. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है तो देन पॉपुलेशन विल स्टॉप ग्रोइंग फॉर सम रीजंस. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. Yes, sir. Yes, sir. बट हमारा केस ये है कि यहाँ पे कोई डिसीज नहीं है इनके पास, कोई फूड रिसोर्सेस में कोई क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन नहीं है. मतलब दे कैन ग्रो एज मच एज दे वांट. अनलिमिटेड रिसोर्सेस है इनके पास. ठीक है. तो इनका पॉपुलेशन कैसे चेंज होगा टाइम के साथ हमको फाइंड करना है. ठीक है. अच्छा, डू यू अग्री दैट द रेट ऑफ increase in population is proportional to the population present? Do you agree? Yes. देखो, rate of population change dp by dt. अच्छा, p represents what? P represents Population. Population. p represents the population. तो अभी आप मेरे को ये बोलो dp by dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? Change in population respect. रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन. ये होगा Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ. Population. Population. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, Yes, sir. Yes. क्योंकि आपने sir. थोड़ी सी देखा. ds by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखा आपने. Yes, sir. dv by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखा. तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा dp by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन. करेक्ट. अच्छा, जो Yes, sir. पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ग्रो हो रही है पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन जो चेंज जिस रेट से हो रही है, जिस रफ्तार से हो रही है, या जिस रफ्तार से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो किस पे डिपेंड करेगी? Sir, present population पे. प्रेजेंट पॉपुलेशन पे. समझ गए? अगर 10 बैक्टीरिया, एक एक बैक्टीरिया 2-2 में डिवाइड होगा तो रेट होगा कितना? 20 बैक्टीरिया Yes, पर sir. यूनिट टाइम. Yes, sir. अगर 100 बैक्टीरिया है अभी तो 1 सेकंड के बाद होंगे 200. 200. 200. अगर 1000 बैक्टीरिया है अभी तो 1 सेकंड के बाद होंगे 2000. है क्या नहीं? Yes, sir. तो Yes, रेट इज प्रोपोर्शनल टू Present population. population. Do you agree? So can I write dp by dt is proportional to p? ऐसे ही लिखते हैं ना प्रोपोर्शनल. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के अगर इक्वल टू लगाना है तो मेरे को क्या आएगा? Sir, constant के. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा. I'll call it small k. तो can I write it as small k into p? Yes, sir. Yes, Yes, आ sir. गया मेरे को. क्या आ गया? क्या आ गया? बोलिए. Different situation. डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया मेरे को. क्या आ गया? Differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया. क्या आ गया? dp by dt is equal to kp. अब काम क्या है मेरा? सॉल्विंग इट. सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन काम है मेरा. तो पहले क्या करूंगा मैं? separate. Sir, separate the variables. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. वेरी गुड. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. तो मैं कैसे करूंगा सेपरेट? देखो गौर से देखना. dp इक्वल्स टू, बोलिए, k इंटू P dt. P in p किसके साथ रखूं? p किसके साथ रखूं? t dt के साथ या dp के साथ? dp के साथ. DP. DP. dp के साथ, क्योंकि जो वेरिएबल जो है उसके साथ जाएगा. ठीक है. तो ये क्या हो गया? dp by t. डू यू एग्री? dp Yes, by sir. t. Yes, Yes, sir. sir. Now let us integrate on both sides. Integrate on Both sides. both sides. तो देखो क्या हो जाएगा. Let me just quickly finish. Time is already over. तो ये होगा k dt. तो इधर इंटीग्रेशन लगा दिया, इधर इंटीग्रेशन लगा दिया, और इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिया. इनिशियल टाइम हमेशा 0 होता है, फाइनल टाइम हमेशा t होता है. इनिशियल पॉपुलेशन क्या होगा? इनिशियल पॉपुलेशन इज Zero. p नॉट. P, sir. P not. p नॉट. इनिशियल पॉपुलेशन p नॉट. ये p नॉट हमेशा साइंस में जो है ना रिप्रेजेंट करता है 0 टाइम पे क्या है. ठीक है. और फाइनल पॉपुलेशन है p. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, Now sir. let us integrate dp
यहाँ पे 1/p लिखूं, एक ही बात है। Yes, sir. Yes. P नॉट टू P इक्वल्स टू के बाहर आ गया Sir, क्योंकि sir. हाँ So what you said about P naught? P नॉट इज इनिशियल पॉपुलेशन। Okay, P sir. naught. Okay. So let me write down. P naught is initial population or population at t equals to 0. Getting my point? Yes, sir. ओके तो ये आ गया 0 to t। अच्छा बोलना 1/p का इंटीग्रल क्या है, जल्दी बोलो। Sir, natural log of P. नेचुरल। अब आपको समझ में आया नेचुरल क्यों है वो, क्योंकि नेचर में आता है वो, ठीक है, हमेशा। Yes, sir. तो मेरा Yes, sir. यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा नेचुरल लॉग ऑफ p, लिमिट्स लगा दो, p नॉट टू p P. इक्वल्स टू k तो कांस्टेंट, 1 का K. इंटीग्रल बोलो क्या है, p Sir, T. T 0 to t। नाउ अप्लाई 0 to T. लिमिट्स अप्लाई करने से क्या आएगा, ln p माइनस ln Then P naught. p नॉट ln P naught. KT. t माइनस 0। तो ये क्या होगा, 0. ln p बाई p नॉट इज इक्वल टू k इंटू टी आएगा, है कि नहीं। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अगर नेचुरल लॉग राइट साइड जाएगा तो क्या होगा। अच्छा एक और स्टेप लिखने दो, समझ में आएगा आपको। लॉग ई पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू के टी आएगा, है कि नहीं। Yes, sir. तो ई अगर उधर जाएगा तो क्या होगा बोलो, पी इक्वल टू और पी बाई पी नॉट इक्वल टू KT log पी बाई पी नॉट इक्वल टू ई पावर के टी होगा, याद है लॉगरिदम्स का। लॉगरिदम जब उधर जाता है बेस बन जाता है। Yes, sir. See, you remember this ना, log 10,000 इक्वल टू 3। Yes, sir. तो अगर जब 10 उधर जाता है तो 1000 इक्वल टू 10 पावर 3। G, sir. Yes, sir. log 216 लेते हैं, 16 इक्वल्स टू 4 implies 16। 10 is equal to 4 square. 2. अच्छा सेम वे log e p बाई पी नॉट इक्वल्स टू के टी, जब उधर जाएगा क्या आएगा, P upon P naught is equal पी नॉट इक्वल टू ई पावर के टी आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन p इक्वल्स टू पी नॉट इंटू ई पावर के टी हो जाएगा। डू यू अग्री। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके अगर इनिशियल पॉपुलेशन 100 है, लेट पी नॉट इज इक्वल टू 100 और k की कुछ वैल्यू ले लो, k की वैल्यू कुछ कांस्टेंट बोलो आप, Sir, 2. 1. 2 1 वॉट एवर, ठीक है। इट डिपेंड्स, के किस पे डिपेंड करेगा, क्या टेम्परेचर है, समझ गए, क्या क्या पीएच वैल्यू है सॉल्यूशन का जिसमें बैक्टीरिया है, उस पे के डिपेंड करेगा। समझ में आई बात। तो p Yes, क्या sir. आ गया, p क्या आ गया, p इक्वल टू क्या हो गया बोलो, p इक्वल टू देयरफॉर p इक्वल टू 100 e पावर 2t। अग्रीड। Yes, sir. Yes, sir. sir. आपका जो बैक्टीरिया है उसका पॉपुलेशन ऐसे ग्रो होगा, कैसे ग्रो होगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। समझ में आया, 100 e पावर 2t, समझ में आई बात। Yes, sir. Yes, sir. Let us just look at that and finish the class. Let us just look at that and finish the class. So I'm deleting this, delete. So population क्या था, equal to 100 times E power 2T. e power 2T. 2T, sir. 2t, right? Yes. है क्या नहीं, एंटर। Yes, sir.
Okay. So this is the graph. Graph देखो. I think this is a very okay. Let me just clear it. Let me just clear it. बोलिए y equals to 100 E power 2t. e power 2t. 2t. ओके, ये आ गया आपका ग्राफ. मैं बताता हूँ ग्राफ का मीनिंग क्या है. तो एक्चुअली 100 बहुत ज़्यादा है, तो आई टेक ए स्मॉलर नंबर. ठीक है, Yes, sir. जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्राफ. लेट मी टेक स्मॉल नंबर 0.001 जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ग्राफ. तो देखो, इंस्टेड ऑफ 100 आई हैव टेकन 0.01 ले लेते हैं, या लेट मी टेक 0.1. ओके, लेट मी टेक 1. लेट मी टेक 1. इनिशियल पॉपुलेशन 1 होगा. ठीक है, तो 1 से स्टार्ट हुआ पॉपुलेशन, और आप देख रहे हो ग्राफ एक एक सेकंड में कितना ऊपर जा रहा है. Yes, sir. Yes, sir. हाउ इज ग्राफ बिहेविंग. देखो, अगर मैं जूम आउट भी करूंगा, तो हाउ इज द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग. सडनली इंक्रीजिंग. As fast as fast. Yes, sir. तो ये इसका Rapidly. इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली. इसका एक वर्ड भी है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. even the pandemics that happen, अगर contagious है pandemic COVID-19 की तरह, it starts with one person or one or two people, but because it is contagious and there is no limit, how the cases will grow, they will grow exponentially. इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं. इवन द पीपल हु डोंट नो मैथमेटिक्स, even the people who don't know physics, even the people who don't know any science, generally even news anchors will use this word, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल क्या है, यहाँ पे ई पावर है, इसलिए एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब वेरी फास्ट ग्रोथ. समझ गए. Yes, sir. So you learn these kinds of things, many other things later, but till here you be perfect. I'll share this notes with you. Just Okay, go through all. Tomorrow we'll continue with uniform motion. Okay. Yes, sir. Yeah. And we'll Khuda also Hafiz, sir. do graphs also. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Khuda Hafiz. Good afternoon, sir. Khuda Hafiz, sir.